Good morning, students. How are you all? How are your studies going on? पढ़ रहे हो बच्चों जो लेसन्स आपको डेली भेजे जा रहे हैं? Please go through them, listen to them carefully and start making your notes. It's a very important chapter that we are doing from history. So, as soon as you get the lesson, कोई बहुत लंबा नहीं होता है daily lesson, and try to make notes as much as question answers you can make. So, just a recap, we have started the second unit of our first lesson, that is the making of nationalism in Europe. And in this topic, in the last class, we have tried to understand how empires were made in Europe, how various empires were made. They were like a patchwork, different languages, different regions, different races of people. They were living in one empire under one emperor. They were all very different from each other, and the only thing binded those people was a common allegiance to the emperor, that they had only one emperor. Otherwise they were entirely different from each other and didn't even understand each other's language, but they were all part of one empire. We have read about one Habsburg Empire, Austria-Hungary, but there were many empires like Habsburg Empire in Europe. ऐसी बहुत सारी empires Europe में थी. Now we'll read about, और लास्ट में हमने समझा था, how did nationalism and the idea of nation state emerged. And that is only our chapter, that out of these empires, how various nation states were made, how people had that feeling of nationalism and they fought for their independence from these empires, and how various nation states were created in Europe. ये हम आगे समझेंगे. But before that, the next topic that we have is the aristocracy and the new middle class. Let's read about the society in Europe at that time. जो लोग रह रहे थे यूरोप में उनके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे. तो that is the aristocracy and the new middle class. You know what is aristocracy? The rich class, the landed class. What is the meaning of the landed class? ज़मींदार जो होते हैं ना, जो लैंड के मालिक होते हैं, they are known as landed class or the aristocratic class. And now emergence of new middle class. So just an explanation, how was the society? See, at that time, जब हम यूरोप की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिस समय की, the society was divided into two major groups. Two social groups थे. The landed class, as I told, जो कि landlords होते थे, and the peasants who were working on their lands. So basically the European society was divided into two sections. The rich, the aristocratic class, and the peasant, the poor who were working on their land. So they were rich and poor class. ये दो classes थी, ये दो groups थे उस समय यूरोप में. Then came the new middle class. So we'll see here how this new middle class इसे नाम दिया गया. How did they emerge? See, there were changes in society. Developments हो रहे थे, technical developments हो रहे थे, and with the help of those technical developments, the nature of people was also changing. The thinking, thought process of people was also changing. और इसी ने rise किया इस new middle class को. तो वो जो rich और poor class के बीच की class, इसलिए उसे क्या नाम दिया गया? मिडिल क्लास. तो ये मिडिल क्लास कैसे एमर्ज हुई, क्या लाइफ थी, और इस मिडिल क्लास ने कैसे चेंजेस लाना शुरू किया, दैट वी आर गोइंग टू रीड टुडे. सो सोशली एंड पॉलिटिकली, सोशल लाइफ में भी और पॉलिटिक्स में भी, अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी. अंडरलाइन करो, यूरोप की सबसे डोमिनेंट क्लास कौन सी थी? ऑफ कोर्स अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी. एंड एज आई टोल्ड यू, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी कौन हुई? वो रिच क्लास, द लैंडलॉर्ड्स. दे वर द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट. सारी पावर इनके हाथ में थी. द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, वेदर दे वर लिविंग इन एनी एम्पायर.
जरूर हम सिर्फ हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में या फ्रेंच एम्पायर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे यूरोप में ज़्यादातर लैंड किसके हाथ में था? ज़्यादातर क्या, कहा जाए तो सारा ही लैंड किसके हाथ में था? इस लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। दे वर द ओनर्स, मालिक थे, भले ही वो किसी भी एम्पायर में रहते हों, लेकिन उनका लाइफस्टाइल सेम था, क्योंकि रिच क्लास है तो दे वर लीडिंग अ सेम वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लैंडलॉर्ड फ्रांस का हो या ऑस्ट्रिया का हो या इंग्लैंड का हो, कहीं का भी हो वो लैंडलॉर्ड, बट द वे ऑफ लिविंग वॉज सेम इन दिस क्लास। दे ओन्ड एस्टेट्स, उनके पास क्या, बड़े बड़े एस्टेट्स के मालिक थे, लैंड उनके पास थे इन द कंट्री साइड, रूरल एरियाज में भी, एंड बिग टाउन हाउसेस, सिटीज़ में दे हैड बिग पैलेसेस। दिस वॉज कॉमन फॉर एवरीवन। गांव में खेती होती थी तो वो उसके मालिक थे सारे खेतों के, और रहते कहाँ थे? दे यूज टू लिव इन सिटीज़ वेयर दे हैव बिग पैलेसेस। हम इन्हें टाउन हाउसेस भी नहीं कह सकते, दे वर बिग पैलेसेस, बड़े बड़े महल जैसे घरों में रहते थे। दे स्पोक फ्रेंच, अंडरलाइन करो, एरिस्टोक्रेटिक लैंग्वेज या जो रिच क्लास की लैंग्वेज थी, दैट वॉज नॉट इंग्लिश। कौन सी लैंग्वेज है? फ्रेंच लैंग्वेज, फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। इफ यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हाई सोसाइटी, यू नीड टू नो फ्रेंच। फ्रेंच बोलना फैशन था। Their families were connected by ties of marriage. Of course, rich class, they got their daughters and sons married to each other. उन्हीं families में marriages होती थी. So this powerful aristocracy, rich class, was numerically a small group. लेकिन जो हम इस aristocratic class की बात कर रहे हैं, ये यूरोप की टोटल पॉपुलेशन का only 10%. Imagine. पावरफुल बहुत हैं, रिच बहुत हैं, सब कुछ इनके हाथ में है, मालिक है सारे लैंड के, लेकिन नंबर क्या है? बहुत कम। टोटल यूरोप की पॉपुलेशन का ओनली 10%. सो दे वर न्यूमेरिकली स्मॉल इन नंबर। फिर 90% पॉपुलेशन क्या है? द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। कौन है वो 90% पॉपुलेशन? पीजेंट्स. एज आई टोल्ड यू, देयर वर ओनली टू ग्रुप्स, either the landed aristocracy, the owners of the land, or the peasants who were working on their land. तो 10% तो वो landed aristocracy है जो owners हैं, and 90% are peasants who are working on their lands. अब ये ध्यान से सुनना, कैसे कैसे एग्रीकल्चर हो रहा है। टू द वेस्ट मीन्स वेस्टर्न यूरोप में द बल्क ऑफ द लैंड, ज़्यादातर लैंड वॉज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। वेस्टर्न यूरोप में एग्रीकल्चर कैसे हो रहा है? किराए पर लैंड ले रहे हैं। जो ये पीजेंट्स हैं ना, ये लैंडलॉर्ड से किराए पर या लीज पर लैंड लेते थे और बदले में लैंडलॉर्ड को क्रॉप या पैसा देते थे। एंड स्मॉल ओनर्स, छोटे छोटे अब खेत हैं उनके पास, उन पर वो खेती कर रहे हैं। वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, तो वो तो था वेस्ट यूरोप का, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में कैसे हो रहा है? द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट एस्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स। सर्फ्स कहते हैं स्लेव्स को। सर्फडम ख़त्म किया था ना नेपोलियन ने, सो सर्फ्स वर स्लेव। तो अब ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में बिग लैंड ओनर्स, एक लैंडलॉर्ड के पास पता नहीं कितने हज़ारों एकड़ ज़मीन है, हाँ, और उस पर उनके गुलाम हैं। द पीजेंट्स वर लाइक देयर सर्फ्स, स्लेव्स हु कल्टिवेटेड देयर लैंड, और बदले में उनको जो भी थोड़ा बहुत मिलता था, आइदर कैश और सैलरी और फूड, जो भी वो लैंडलॉर्ड्स जो उनके मालिक होते थे देते थे, वो बस उन गुलामों को मिलता था। तो दो तरह से एग्रीकल्चर वेस्टर्न यूरोप में अलग और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में अलग तरीके से फार्मिंग की जा रही है। सो दिस वॉज द पैटर्न ऑफ सोसाइटी इन यूरोप, डिवाइडेड इनटू टू सोशल ग्रुप्स, द लैंडलॉर्ड्स एंड द पीजेंट्स। तो ये हुआ। अब क्या आया इनके बीच में? द न्यू मिडिल क्लास। अब वो देखते हैं ये कहाँ से आई। इन वेस्टर्न and central parts of Europe,
The growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. So this is the rise of new middle class. अभी तक सिर्फ एक मेन ऑक्यूपेशन है यूरोप में, दैट इज़ फार्मिंग अप टिल नाउ. ठीक है, और ये फार्मर्स पीजेंट्स कैसे काम कर रहे हैं ये अभी हमने समझा. बट विद द ग्रोथ ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट, जैसे जैसे टेक्निक्स आती गई, अभी तक सारा काम हाथ से हो रहा है. बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नाउ प्रोडक्शन स्टार्टेड बाय मशीन्स. तो इंडस्ट्रीज आई ना साथ में, तो कहाँ पर? वेस्टर्न यूरोप में और सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रीज व सेटअप. प्रोडक्शन बढ़ गया इंडस्ट्रीज़ में, तो आप समझते हो मास प्रोडक्शन होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा. एंड विद दैट लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्टेड ट्रेड एक्टिविटीज़, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड सेलिंग थिंग्स, ये सब स्टार्ट हुआ. इससे डेवलप हुए टाउन्स जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ थी और एक नई कमर्शियल क्लास सामने आई, द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ट्रेडर्स. कौन सी है बच्चों ये कमर्शियल क्लास? The industrialists and traders who are doing industrial production, and the traders are taking goods from one place to another. और इनकी एग्जिस्टेंस किस पर बेस्ड थी? प्रोडक्शन फॉर द मार्केट. उस इंडस्ट्रीज में जितना प्रोडक्शन हो रहा है. तो नाउ राइज ऑफ न्यू क्लास. कौन सी क्लास? कमर्शियल क्लास, जो इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन भी कर रही है और ट्रेडर्स हु आर टेकिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अंडरलाइन करो इसे. इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन इन इंग्लैंड. फ्रांस में नहीं हुआ, कहाँ हुआ? सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ. इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. कब स्टार्ट हुआ? आफ्टर 1750, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंग्लैंड में, वहाँ इंडस्ट्रीज सेटअप की गई. तो अब जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं कौन हुए? वो इंडस्ट्रियलिस्ट. और उन मशीन्स पर इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं वो कौन है? वर्कर्स. तो न्यू ग्रुप सामने आ रहे हैं ना, सोशल ग्रुप्स. अभी तक लैंडलॉर्ड और पीजेंट्स थे, हाँ, अब कौन आ गए सामने? ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड वर्कर्स. बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स इज ऑकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. सी, इंग्लैंड ने यहाँ लीड ले ली क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपेंड इन इंग्लैंड. फर्स्ट इंडस्ट्रीज वर सेटअप इन इंग्लैंड एंड नियरली 70 to 80 years, इतने सालों बाद फ्रांस और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. तब तक तो इंग्लैंड बहुत लीड ले चुका था, तब से बहुत पावरफुल बन गया इंग्लैंड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो फर्स्ट इट स्टार्टेड इन इंग्लैंड, and then after 50 to 70 to 80 years it happened in France and other countries of Europe. In its wake, after industrialization, what happened? New social groups came into being. कौन कौन से अभी हमने डिस्कस किए? The traders, the industrialists, the workers. ठीक है, a working class population and middle classes made up of industrialists, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, है ना. ये सारी क्लास क्या कहलाई बच्चों? मिडिल क्लास. वो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्स, क्योंकि ये उतनी गरीब भी नहीं है जितने पीजेंट्स हैं और उतनी रिच भी नहीं है जितने लैंडलॉर्ड्स हैं. तो इसलिए इस क्लास को बिजनेस क्लास, कमर्शियल क्लास एंड द नेम वॉज गिवन मिडिल क्लास. इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप these groups were smaller in number till late 19th century. आ गई है मिडिल क्लास, लेकिन इनका नंबर अभी कम है. And it was among the educated, liberal minded. And remember children, this is also educated class. To set up a industry, to run a machine, you need to be educated. एक अनपढ़ आदमी मशीन नहीं चला सकता, टेक्निकल स्किल चाहिए ना. तो ये सब एजुकेटेड क्लासेस हैं. एंड यू नो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कुछ अर्ली इन्वेंशंस में कौन सी मशीन थी? प्रिंटिंग प्रेस. सो बुक्स वर प्रिंटेड नाउ. पीपल स्टार्टेड रीडिंग. जब आदमी एजुकेट होने लगता है, लिटरेट होने लगता है,
तो उसके माइंड खुलने लगता है ना, ओपन आउटलुक। तो वो ये एजुकेटेड क्लासेस हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेस चलाने के लिए बहुत कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत कुछ समझना पड़ता है। तो दीज आर लिबरल माइंडेड पीपल, एजुकेटेड पीपल. That idea of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. और ये जो educated class है, क्योंकि अब ये गुलाम नहीं है लैंडलॉर्ड्स के या किंग्स के, इनके माइंड में सबसे पहले ये आइडिया आया कि अब हमें एम्पायर नहीं चाहिए, वी वॉन्ट टू मेक आवर ओन नेशन स्टेट्स. एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, वो जो फर्स्ट सेकंड एस्टेट को मिली हुई थी या रिच क्लास को मिली हुई थी, उन्हें ख़त्म करो. नाउ वी आर ऑल्सो रिच. जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेस मैन, दे स्टार्टेड अर्निंग, दे ऑल्सो स्टार्टेड बिकमिंग वेरी रिच. तो उन्होंने कहा अगर एरिस्टोक्रेटेड क्लास को किस बात की प्रिविलेजेस, हम भी रिच हैं. और इन्होंने खुद के लिए प्रिविलेजेस नहीं मांगी, इन्होंने कहा इन प्रिविलेजेस को ख़त्म करो. तो एक तरह से सोशल यूनिटी अमंग द वेरियस क्लासेस, ये आइडिया धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है. बिकॉज दिस मिडिल क्लास इज़ एजुकेटेड क्लास. ये रिच पुअर के डिफरेंस को मिटाना चाहते हैं, ये एजुकेटेड अनएजुकेटेड के डिफरेंस को मिटाना चाहते हैं. सारी रिच होने के वो जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिल रही थी, राजा का बेटा राजा या रिच का बेटा रिच, उन सारी प्रिविलेजेस को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले इस क्लास ने डिमांड करी. So this was the rise of new middle class. From next class we'll start what did liberal nationalism stand for. Liberal openness, इसको हम समझेंगे और कैसे ये nationalism का आइडिया अलग अलग स्पेयर में क्या मतलब होता है और कैसे पॉपुलर हुआ और यूरोपियन कंट्रीज़ पर इसका क्या असर हुआ. That we'll start in next class. Till then, keep reading.